السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4TV خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ گستاخی پر مبنی امریکی فلم اور اس کی تشہیر پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ۔ پولیس حکام سے صدر مجلس کی تحریری نمائندگی، عوام سے پرامن رہنے کی اپیل۔ صدر تلگودیشم صرف 32 لاکھ روپوں کے اثاثوں کے مالک اور 17 کروڑ روپے کے مقروض، چندر بابو نائیڈو کا ادعا۔ چندر بابو نائیڈو ناقابل بھروسہ شخص، تلنگانہ پر مکتوب کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا، شیلا جنات اور جنادھن ریڈی کی تنقید۔ قائد مجلس اکبر اویسی نے کیا اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے دفتر کا دورہ، فیس باز ادائیگی اسکیم میں تبدیلیوں کی مخالفت۔ اور مینجمنٹ کوٹے کے تحت میرٹ کی بنیاد پر داخلے، صرف آن لائن داخلوں پر عدالت کی پابندی، نائب وزیر اعلیٰ کی وضاحت۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مجلس اتحاد مسلمین نے ملعون امریکیوں کی بنائی ہوئی فلم اور اس کی تشہیر پر بھی امتناع عائد کروانے کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے ریاست کے اعلیٰ پولیس عہدیداروں، ایڈیشنل ڈی جی ایس اے ہدا، سائبر کرائم ڈی جی مہندر ریڈی، آئی جی انٹیلیجنس اور کمشنر پولیس سے تحریری نمائندگی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کر دینے والی امریکی فلم، حتیٰ کہ اس کی تشہیر پر بھی فوری پابندی عائد کر دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا اور اپنی جان، مال اور اولاد کو بھی شان رسالت پر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، لیکن بعض طاقتیں وقفے سے مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرتی ہیں تاکہ مسلمانوں کو سڑکوں پر لا کر اسلام کو بدنام کیا جائے اور مسلمانوں کو تشدد پسند قوم کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ بیرسٹر اویسی نے پولیس عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ امن کی برقراری چاہتے ہیں تو امریکی فلم پر فوری امتناع عائد کرے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں مختلف قسم کے تہواروں کی تیاری جاری ہے، جس کے پیش نظر امن کی برقراری کو اولین اہمیت دی جانی چاہیے۔ صدر مجلس نے شہریان حیدرآباد سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ امن برقرار رکھیں۔ بیرسٹر اویسی کے ہمراہ سید احمد پاشا قادری، محمد وراثت رسول خان، معظم خان اور رکن کونسل امین الحسن جعفری موجود تھے۔ پچھلے 2 دن سے جو ایک پکچر بنائی گئی ہے جس کا نام انوسنس آف مسلمس ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ مصر میں اور دنیا کے لیبیا میں سب احتجاج ہوا، لوگ مارے گئے، معصوم لوگ مارے گئے۔ اس سلسلے میں ہم لوگ آج ایڈیشنل ڈی جی صاحب ہدا صاحب سے ملنے آئے اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو پکچر بنائی گئی ہے اس کو ہندوستان میں اور آندھرا پردیش میں ضروری ہے کہ اس پر پابندی عائد کی جائے، اور دوسرا یہ کہ حکومت کا کام یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر خاص توجہ دے۔ اس کا ٹریلر یوٹیوب پر ہے، حکومت کا کام یہ ہے کہ اس ٹریلر پر یوٹیوب کے آرگنائزیشن سے بات کر کے اس پر پابندی عائد کی جائے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانیت کے لیے رسول اکبر ہیں، اور وہ ایک امن کے پروفٹ آف پیس بھی آپ کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ حکومت اپنا کام انجام دے اور عوام بھی جو ہے کسی بھی قسم سے تشدد میں یا وائلنس کی کہیں پر کسی جگہ پر نہ ہو، کیونکہ لوگ بہت سی کوششیں کریں گے کہ شہر کا یا ریاست کا ہمارا امن بگڑے، کیونکہ آنے والے دنوں میں گنیش کا تہوار ہے، پھر اس کے بعد ایک انٹرنیشنل یعنی 122 ممالک کے لوگ COP میں آ رہے ہیں، اور ان سب سے ہٹ کر ضروری ہے کہ ہم امن کو برقرار رکھیں اور ساری دنیا کو ہم بتائیں گے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے یقیناً ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔
मगर हम दोबारा अपने आप को कुरान और इस्लामी तालीमात को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम सारी दुनिया को बताएंगे कि सरकार की सुन्नत क्या है, और सबसे बड़ी सुन्नत यह है कि हम अमन को बरकरार रखें। ये लोग चाहते ये हैं, ये एक प्रोवोकेशन है कि इसके ज़रिए से मुसलमानों के जज्बात को मजरू करें और फिर तशद्दुद और अमन को तोड़ा जाए। इसलिए हम पहले ही से हुकूमत को आके बताएं, और मैं कमिश्नर अनुराग शर्मा साहब से बात किया हूँ, उन्होंने मुझे तयक़ुन दिया है कि वो जो हमारी नुमाइंदगी है उसके ताल्लुक़ से साइबर जो डिपार्टमेंट है उससे कहेंगे, और दूसरे जो भी जैसे इस फिल्म के ताल्लुक़ से बैन करने के सिलसिले में वो भी हुकूमत को बताएंगे। ये अहम चीज़ है, इस पर मैं चाहूँगा कि अवाम इसका बेहतरीन तरीके से मुकाबला कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं कि हम बहैसियत मुसलमान हम दोबारा अपने आप को कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल पैरा होने का अहद उठाएं, दुनिया को बताएं कि इस तरह की हरकतों से हम इस्लाम की तालीमात को नहीं छोड़ने वाले, बल्कि और ज़्यादा ताकत के साथ और इखलास के साथ हम आगे बढ़ेंगे और दुनिया को बताएंगे कि सरकार दो आलम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, इस्लाम की तालीमात क्या है। तो आप के बाद हुदा साहब ने क्या जवाब दिया? हुदा साहब ने तमाम बातों का नोट लिया, वो भी इसकी हसासियत से वाकिफ़ हैं, वो भी जानते हैं कि एक नाजुक मसला है, और उन्होंने कहा कि वो पुलिस के जितने आलाउदार हैं रियासत में उनको बताएंगे, इंटेलिजेंस के लोगों को बताएंगे। और मैं अभी महेंद्र रेड्डी साहब से बात किया हूँ, एडिशनल डीजी इंटेलिजेंस, उनके पास भी हम जा रहे हैं एक वफ़द की शक्ल में, उनसे भी हम ये हमारे एहसासात से उनको वाकिफ़ कराएंगे। मैं चीफ मिनिस्टर से भी मुतालबा करता हूँ कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि इस फिल्म पर पाबंदी आयद की जाए, और तमाम आवाम से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो इस प्रोवोकेशन का शिकार ना हो। ये एक डेलिबरेट प्रोवोकेशन है और ये चाहते हैं कि अमन ख़राब किया जाए। हम अमन को हरगिज़ बिगड़ने नहीं देंगे। हमारे जज्बात ज़रूर मजरू हुए हैं, क्योंकि कोई गैरतमंद इंसान या मुसलमान इस बात को हरगिज़ मानने को तैयार नहीं है कि इस तरह से आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेंगे। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने मुतनाज़ा अमरीकी फिल्म को इंटरनेट के जरिए फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। मजलिस की नुमाइंदगी के बाद उन्होंने कहा था कि इस फिल्म को यूट्यूब और समाजी राब्ते की वेबसाइट से डिलीट करवाने की कोशिश की जा रही है। अनुराग शर्मा ने कहा कि अगर कोई शख्स फेसबुक या किसी और सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए इस फिल्म को फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो अमन और हम आहंगी बरकरार रखें और इंटरनेट पर ऐसी कोई सरगर्मी देखें जिससे अमन की फ़िज़ा ख़राब होती है तो फौरी पुलिस को मुत्तले करें। हयातियाती तनव्वो यानी बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस रियासत और अजीम तर बलदिया हैदराबाद के लिए बाइस फ़ख्र है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर गीता रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस कॉन्फ्रेंस पर 455 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसमें से 273 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती निज़ाम में मुदाखलत के असरात से मुताल्लिक़ तफसीली रोशनी डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस आने वाली नस्लों के लिए शऊर बेदारी कॉन्फ्रेंस साबित होगी। गीता रेड्डी ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस को यादगार बनाने और आवाम तक उसका पैगाम पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी खुद इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। गीता रेड्डी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के दौरान यकुम 8 और 17 अक्टूबर को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मंदुबीन के लिए इशाइया तरतीब दिया जाएगा, जबकि रियासती हुकूमत 18 तारीख को इशाइये का एहतमाम करेगी। गीता रेड्डी ने बताया कि 2 अक्टूबर को बच्चों के लिए खुसूसी प्रोग्राम होगा। 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले इजलास में 400 ता 500 मेयर्स शिरकत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर लेबर डी नागेंद्र ने कहा कि बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि कुदरती निज़ाम में मुदाखलत से जो असरात आफात समावी की शक्ल में सामने आ रहे हैं, इस सिलसिले में अवाम में शऊर बेदार किया जा सकता है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान खलल अंदाजी के बयानात को नामुनासिब करार दिया। नागेंद्र ने अवाम से कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में ताउन की अपील की। हयातियाती तनव्वो कॉन्फ्रेंस के इंतजामात हुकूमत के लिए एक चैलेंज से कम नहीं है। 19 सितंबर से 19 अक्टूबर तक GHMC और पुलिस अमला इंतजामात को लेकर परेशान है। वहीं आवाम इस कॉन्फ्रेंस के मकासद और क़वायद से लाइल्म है। हुकूमत जहां
करोड़ों रुपए इस कॉन्फ्रेंस पर खर्च कर रही है, वहीं वो आवाम को मालूमात बहम पहुंचाने में नाकाम है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। चंद रोज से अवाम के जहनों में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर सालों से सड़कों की मरम्मत के काम को नजरअंदाज करने वाले जेएचएमसी का अमला अचानक इतना मुतहरिक कैसे हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद और हुकूमत के ताज में हयातियाती तनु कॉन्फ्रेंस की मेजबानी का हीरा जड़ने वाला है, जिससे जेएचएमसी और हुकूमत के साथ साथ रियासत के विखार में मजीद इजाफा होगा। इस कॉन्फ्रेंस की तशहीर के लिए 1.5 करोड़ रुपए की कतई रकम खर्च की जा रही है। मगर अफसोस की बात यह है कि अवाम इस कॉन्फ्रेंस के मकासिद और फवायद से नाबलद हैं। इस कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात है, ताहम इस पैगाम को अवाम तक पहुंचाने में हुकूमत नाकाम रही है। लेकिन रियासती हुकूमत और जेएचएमसी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी में शब रोज मसरूफ हैं और इस जिम्मेदारी को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हयातियाती तनु कॉन्फ्रेंस में 193 ममालिक के तकरीबन 12,000 मंदुबीन शिरकत करने वाले हैं। ये कॉन्फ्रेंस हैदराबाद के नवाही इलाकों शिल्पारामम, गच्चीबौली और हाईटेक सिटी में मुनक्किद होगी। कॉन्फ्रेंस के इंतजामात पर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की जा रही है। सड़कों की मरम्मत की जा रही है, हत्ता कि उन फुटपाथ की भी मरम्मत की जा रही है जहां से मंदुबीन का गुजर होने वाला है। किस्मत से इनमें पुराने शहर की सड़कें भी शामिल हैं। इस कॉन्फ्रेंस की मेहरबानी से दहाइयों से गुमनामी में पड़ी तारीखी इमारतों पर भी हुकूमत और जेएचएमसी की नजर करम अब पड़ी है और उन इमारतों की आहकपाशी के काम भी किए जा रहे हैं। लेकिन उधर अवाम को इन इंतजामात से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लबे सड़क कारोबार करने वाले छोटे ताजरीन को इस कॉन्फ्रेंस के दौरान शदीद मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि जिन रास्तों, सड़कों और फुटपाथ को सजाया व चमकाया जा रहा है, वहां पर ठेला बंडी या डिब्बा लगाने की इजाजत नहीं रहेगी। कम रफ्तार वाली गाड़ियों पर भी पाबंदी का मंसूबा है। अगर अब दीगर इलाकों की बात की जाए तो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले मंदुबीन जब भी सैर व तफरी को निकलेंगे तो उनके लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात किए जा रहे हैं और इन इंतजामात के लिए नीम फौजी दस्तों के अलावा अहम मुकामात पर 3000 सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए जा रहे हैं। जेएचएमसी और पुलिस अमले की रुखसतें भी मनसूख कर दी गई हैं, लेकिन हुकूमत के सामने सिक्योरिटी से मुतालिक और भी चैलेंजेस है, क्योंकि 19 सितंबर से गणेश त्यौहार का आगाज होने जा रहा है। 29 सितंबर को गणेश मूर्तियों का विसर्जन होगा, जिसके लिए हमेशा से सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए जाते रहे हैं। गणेश विसर्जन जुलूस के फौरी बाद कचरे की निकासी जेएचएमसी के लिए एक मसला बन सकती है। हुसैन सागर की तफरी के लिए जब बैरूनी मंदुबीन आएंगे तो न वहां मूर्तियों के विसर्जन और गंदगी से पैदा तौफुन का सामना करना पड़ सकता है। उधर अलहदा तेलंगाना की हामी जेसी ने 30 सितंबर को मार्च का ऐलान किया है, यानी विसर्जन के दूसरे दिन। इस तरह 29 सितंबर को गणेश विसर्जन जुलूस से थकी हुई पुलिस को 30 सितंबर को फिर से चाको चौबंद रखना होगा, क्योंकि साबिक में हुए मार्च के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात भी पेश आ चुके हैं। अगर इस मार्च से शहर के हालात मुतासिर होते हैं तो इसका असर कॉन्फ्रेंस पर पड़ सकता है। बहरहाल हुकूमत मंदुबीन के रास्ते से स्पीड ब्रेकर्स तो हटा रही है, लेकिन सामने आने वाले ब्रेकर्स का सामना भी उसे करना है। वैसे इस कॉन्फ्रेंस से अवाम को क्या फायदा होगा, ये कोई नहीं बता रहा है। हुकूमत खती रकम खर्च कर रही है, लेकिन शहर में ऐसे भी कई इलाके हैं जहां पर मसाइल के अनबार हैं, लेकिन उस जानिब हुकूमत की नजर नहीं पड़ती। हुकूमत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपने अवाम की नजरों में उसका क्या मुकाम है, वो तो सिर्फ बैरूनी मंदुबीन की नजरों में मुकाम बनाने में मसरूफ है। इसलिए उनकी मेजबानी में दिन रात काम किए जा रहे हैं। यह भी मालूम हुआ कि कॉन्फ्रेंस के मुकामात पर बरकी कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन दीगर इलाकों में बरकी कटौती जारी रहेगी। इस पर यही कहा जा सकता है कि गैरों पे करम, अपनों पे सितम। कैमरामैन जब्बार के साथ शमसुद्दीन फेरोज की रिपोर्ट।